purchase order is a legal document that is given to supplier which states the requirement of the materials or services ordered by the company. परचेस ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जो हम वेंडर को देते हैं, जिसमें हमको जो भी मटेरियल चाहिए या हमको जो भी सर्विस चाहिए उसका रिक्वायरमेंट और उसके जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करके वो डॉक्यूमेंट हम सप्लायर को देते हैं. इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है. बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, मतलब जो पार्टी ऑर्डर दे रहा है, जो पार्टी ऑर्डर को फुलफिल करने वाला है, दोनों ने उस परचेस ऑर्डर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट नहीं करना है. बोथ हैव टू follow the terms and conditions that are mentioned on the purchase order. ठीक है. To create purchase order in SAP, transaction code that is used is ME21N. To change ME22N. To display ME23N. Create, change and display. Okay. Let me log into system and we will see in system. ME21N, or you can follow the path logistics, materials management, purchasing, purchase order, create. ME21N, vendor supplying plant known. Okay, so ME21N is used to create purchase order where you know the vendor or supplying plant. Okay, double click on this and ME21N transaction code opens you create purchase order screen. So this is the screen to create the purchase order. Now on the left panel you can see this document overview off, so I'll just off it. 1 minute. Okay, document overview on. When you click this document overview on, you can see this left panel here which gives you document overview. What is document overview? What is the use of this? We will see in some time. Let me off it. Now here you can see a create icon. So this create icon is used to create the purchase order. Suppose I am displaying a purchase order. Okay, this purchase order I have displayed. This is in display mode. Now I want to create a new purchase order. Straight away I can click on this create icon. Instead of going back and executing ME21N again, you can simply click on this create button and this will open the screen for creation. And you can enter the values and you can create a purchase order. This icon other purchase orders is used to display the purchase orders. Existing purchase orders. आपने कोई PO create किया है, आपको उसको display करना है. While creating the new PO, you want to take reference of old PO and you want to display that PO in the screen. You can use this other purchase order. Once you click this, the latest PO that you have created is automatically displayed by the system here. आपको कोई PO number change करना है, you can change the PO number and that PO number can be displayed here.
ठीक है। सो एग्जिस्टिंग पीओ का अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यू कैन यूज दिस अदर परचेस ऑर्डर। प्रिंट प्रीव्यू, यस्टरडे हमने देखा था, प्रिंट प्रीव्यू इज यूज्ड टू सी द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। प्रिंट करने के बाद वो कैसा दिखता है, उसका अगर हमको प्रीव्यू देखना है तो दिस प्रिंट प्रीव्यू बटन इज यूज्ड। Messages, in messages we can enter output types. These output types are responsible for printing the purchase order or to communicate with the vendor। हमने कोई पीओ बनाया है, वो पीओ हमको वेंडर को कम्युनिकेट करना है। हमने हमारे सिस्टम में पीओ बनाया, वो वेंडर को कैसे पता चलेगा कि उसको पीओ हमने रेज किया है? अनलेस एंड अनटिल you send the purchase order details to supplier, he will not come to know that we have given a PO to him, right? So messages in SAP are a use of communication or a means of communication to communicate with the suppliers or customers। सेल्स साइड पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन होता है, परचेसिंग साइड पे वेंडर के साथ कम्युनिकेशन होता है। तो जो भी कम्युनिकेशन है उसके लिए मैसेजेस का यूज होता है। आउटपुट टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, वी विल सी लेटर, बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड मैसेजेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द सप्लायर। सप्लायर को परचेस ऑर्डर भेजना है, मैसेज का यूज होता है। सप्लायर को रिमाइंडर भेजना है, मैसेज का यूज होता है। सप्लायर को रिजेक्शन लेटर भेजना है, मैसेज का यूज होता है। सप्लायर को क्रेडिट मेमो भेजना है, मैसेज का यूज होता है। ठीक है। तो सप्लायर को जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग मैसेजेस we can send those documents to suppliers। Then here you see some personal settings। Now what are these personal settings? So as a user, जो भी यूजर इस स्क्रीन में है उसको उसके यूजर आईडी में कुछ सेटिंग्स करने हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स। ओके, सो दैट डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर दैट स्पेसिफिक यूजर, मैंने लॉगिन किया है, मुझे यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग करने, आई कैन डू। वो सिर्फ मेरे यूजर आईडी में एप्लीकेबल होंगे, किसी और के यूजर आईडी में एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज इट इज पर्सनल सेटिंग। तो जिस भी यूजर ने लॉगिन किया है और जो भी स्क्रीन में है, अभी जैसे मैंने इस यूजर आईडी से लॉगिन किया है, इफ आई डू एनी सेटिंग हियर, दैट सेटिंग्स विल बी एप्लीकेबल टू दैट यूजर, और वो डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगे। ठीक है। So what are the settings available here? You can see in basic settings, document overview, selection period for my documents. Document overview, where is the document overview? Here is the document overview। तो उसमें डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में मैंने क्रिएट किए हुए जो परचेस ऑर्डर्स हैं वो वहां पे मुझे दिखते हैं। तो वो परचेस ऑर्डर्स मुझे कितने टाइम तक के दिखने चाहिए? लास्ट 1 वीक के, 1 ईयर के, 1 मंथ के, 6 मंथ्स के, 2 वीक्स, यस्टरडे। ओके, सो यू कैन स्पेसिफाई हियर कि कितने ड्यूरेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में देखने हैं। ओके, हेडर डेटा परचेस ऑर्डर स्टैंडर्ड सेटिंग यहाँ पे सेट किया हुआ है। प्रोसेस मैसेजेस डायरेक्टली, वार्निंग मैसेजेस, सक्सेस मैसेजेस, इंफॉर्मेशन मैसेजेस। ठीक है, अगर कोई मैसेज आता है, वार्निंग मैसेज या सक्सेस मैसेज, सिस्टम विल प्रोसेस इट डायरेक्टली। कन्वर्जेंस डिस्प्ले की, इंटरनल सर्च हेल्प ऑन। ठीक है, ये क्या है? डिस्प्ले की, जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के सामने एनबी दिख रहा है, तो एनबी दिखता है बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्ले की। अगर आप इसको डिसेलेक्ट करोगे तो वो एनबी आपको नहीं दिखेगा। डिफॉल्ट वैल्यूज, हियर यू कैन मेंटेन द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर क्रिएशन ऑफ परचेस ऑर्डर, पीओ हेडर एंड परचेस ऑर्डर आइटम। पीओ हेडर में क्या है? जैसे व्हेन वी क्रिएट द परचेस ऑर्डर, द इंफॉर्मेशन दैट वी एंटर इन द परचेस ऑर्डर, देयर आर 3 sections: header, item overview and item detail। So in header we enter the header information। What is header information? The data that is common for all the items is maintained in the header।
सो इफ यू सी दिस पीओ, देर आर टू लाइन आइटम्स। हमने दो मटेरियल्स इस पीओ में ऑर्डर किए। ये दोनों मटेरियल का जो कॉमन डेटा है दैट इज मेंटेन्ड इन द हेडर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये दो मटेरियल हम एक ही सप्लायर से ऑर्डर कर रहे हैं, सो सप्लायर इज इन द हेडर डेटा। एक ही कंपनी कोड के प्लांट में उसको हम ले रहे हैं। अगर ये मटेरियल मुझे दूसरे प्लांट में चाहिए विच बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंपनी कोड, आई कैनॉट प्लेस इट इन वन परचेस ऑर्डर, बिकॉज अगर दो अलग अलग कंपनी कोड में मटेरियल चाहिए तो एक पीओ में तो मैं एक ही कंपनी कोड डाल सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे दो परचेस ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, परचेसिंग ग्रुप P10, तो ये दोनों मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए अगर P10 का ही यूज होता है तो ही मैं वो दोनों मटेरियल इस पीओ में ऐड कर सकता हूँ। अगर एक मटेरियल को P10 से लेना है, दूसरे मटेरियल को P20 से लेना है, तो आई नीड टू क्रिएट अ न्यू परचेस ऑर्डर, सेपरेट परचेस ऑर्डर, बिकॉज हियर आई कैन एंटर ओनली वन परचेसिंग ग्रुप। सेम गोज विथ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं उन मटेरियल्स को ऑर्डर करता हूं तो ही मैं उनको एक परचेस ऑर्डर में प्लेस कर सकता हूं। अगर ये दोनों के लिए अलग अलग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना है तो मुझे दो अलग अलग पीओ बनाने पड़ेंगे। सो हेडर डेटा इज कॉमन फॉर ऑल द लाइन आइटम्स। तो जितने भी आइटम आप पीओ में ऐड कर रहे हो उनके लिए हेडर डेटा कॉमन होता है। अगर हेडर डेटा डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट परचेस ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे। सर क्लियर, यहाँ समझ में पे आ रहा हाँ सर, ये यहाँ पे वो एनबी स्टैंडर्ड पे एनी टाइम वो ही सिलेक्शन कर रहा ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलत सिलेक्ट हो गया तो परचेस ऑर्डर क्रिएट नहीं होता है। है? नहीं, पीओ क्रिएट होता है, बट आप जो डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करोगे उसमें जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से वो बनाना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूबी सिलेक्ट किया तो इट इज एस टी ओ पी ओ, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। वहां पे वेंडर नहीं होता है, वहां पे सप्लायर होता है। सो डॉक्यूमेंट टाइप्स, द डॉक्यूमेंट टाइप इज यूज्ड टू differentiate between different types of procurement processes. Document type is used to differentiate between different types of procurement processes. For example, अगर हमने NB standard PO किया तो it's a standard external procurement जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें PO बनेगा, गुड्स रिसिप्ट होगा, इनवॉइस होगा, स्टॉक मटेरियल प्रोक्योरमेंट। यहीं पे अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप यूबी को सिलेक्ट करते हैं एसटीओ, सो दैट बिकम्स स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया परचेस ऑर्डर। ठीक है, यहीं पे एक और है एफओ, फ्रेमवर्क ऑर्डर, विच इज यूज्ड प्योरली फॉर कंज्यूमेबल मटेरियल्स। फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट टाइप को चेंज करते हो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चेंज होता है। So this document type controls many things in the purchase order. ठीक है, we will see later। जैसे हमने मटेरियल मास्टर में मटेरियल टाइप को देखा, वेंडर मास्टर में वेंडर अकाउंट ग्रुप को देखा, वैसे परचेस ऑर्डर में ये जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप भी बहुत सारी चीजों का कंट्रोल करता है। जैसे नंबर असाइनमेंट, तो इस पीओ को जो नंबर असाइन होता है वो इस डॉक्यूमेंट टाइप से होता है। जैसे फील्ड सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट टाइप पे भी फील्ड सिलेक्शन होता है, कौन सा फील्ड ऑप्शनल है, कौन सा फील्ड मैंडेटरी है। ठीक है, so this document type is used to differentiate between different procurement processes. Clear? ओके सर। ठीक है, then this is your purchase order number, this is supplier where you enter the vendor number, and this is document date, the date on which the purchase order is created. In header data you can see this delivery slash invoice tab where you can maintain the payment terms. तो ये मटेरियल जब हम इस वेंडर से सप्लाई करके ले रहे हैं, so the agreed payment terms with the supplier are maintained in the payment terms. ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर हमने 10 मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं तो वो 10 मटेरियल का पेमेंट टर्म
सेम होगा। सो कॉमन जो भी 10 मटेरियल के लिए होगा दैट इज प्लेस्ड इन द हेडर। ठीक है। देन करेंसी INR एक्सचेंज रेट, अगर इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन है तो एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे मेंटेन किए जा सकते हैं। कंडीशंस, तो कंडीशंस आर कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस। ठीक है। तो जो भी कंडीशंस, मतलब एक प्राइस जो है वो सारे लाइन आइटम के लिए एप्लीकेबल है। द प्राइस विच इज कॉमन फॉर ऑल द मटेरियल्स इज मेंटेन्ड एट हेडर लेवल। ठीक है। सपोज 10 मटेरियल का हमने परचेस ऑर्डर प्लेस किया और वो 10 मटेरियल एक ही ट्रक में लोड करके सप्लायर हमको बेचने वाला है, और उसके लिए वो फ्रेट चार्ज करने वाला है 500 रुपीज फॉर ऑल द 10 लाइन आइटम्स। तो वो जो 500 का कॉस्ट है दैट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द 10 लाइन आइटम्स। सो सच कंडीशंस आर कॉल्ड एज हेडर कंडीशंस। तो जो वैल्यू सारे मटेरियल के लिए अप्लीकेबल है, कॉमन है, वो हेडर में जाएगा। अगर फ्रेट इंडिविजुअल मटेरियल के लिए अलग से लगेगा तो दैट कंडीशन इज प्लेस्ड एट लाइन आइटम लेवल। यहाँ पे कंडीशंस में वो लाइन आइटम लेवल पे वो फ्रेट आएगा। ठीक है। बाद में जब हम प्राइसिंग प्रोसीजर को देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्स्ट, अगर बायर को कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे हेडर में बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे दिए हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। एड्रेस ऑफ द सप्लायर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, योर रेफरेंस जिसमें सप्लायर का कॉन्टैक्ट पर्सन आप मेंटेन कर सकते हो, आर रेफरेंस कॉन्टैक्ट पर्सन फ्रॉम द ऑर्डरिंग कंपनी, सेल्स पर्सन टेलीफोन नंबर जनरल डिटेल्स हैं, ये फिल किए तो भी चलता है, नहीं फिल किए तो भी चलता है। पार्टनर्स, तो जो पार्टनर फंक्शंस हमने सप्लायर मास्टर में देखे थे, वेंडर मास्टर में, अगर एक से ज्यादा सप्लायर्स किसी ट्रांजैक्शन में है तो देयर वी कैन सी दी पार्टनर फंक्शंस हियर। एडिशनल डेटा में कोई इंपॉर्टेंट फील्ड है नहीं, ये ऑप्शनल होता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप एंड कंपनी कोड आर एंटर्ड हियर। तो जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डाला है, जो परचेसिंग ग्रुप यहाँ पे डाला है, या जो कंपनी कोड यहाँ पे डाला है, उसी के रिलेटेड आइटम्स आप इसमें ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। स्टेटस टैब गिव्स यू द स्टेटस ऑफ द परचेस ऑर्डर, कि आपने कितने अमाउंट का परचेस, कितने क्वांटिटी ऑर्डर किया है, उसका टोटल अमाउंट कितना होता है, कितना डिलीवर हुआ है, सप्लायर ने कुछ क्वांटिटी अगर डिलीवर किया है तो वो यहाँ पे अपडेट होगा, उसका अमाउंट अपडेट होगा, कितना पेंडिंग है डिलीवरी के लिए वो भी यहाँ पे अपडेट होगा, एंड अगर आपने इनवॉइस किया है तो इनवॉइस के डिटेल्स भी यहाँ पे अपडेट होंगे। वी विल सी विद एन एग्जांपल। पेमेंट प्रोसेसिंग में रिटेंशन और डाउन पेमेंट, ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू आइटम सेक्शन, आइटम डिटेल्स। नाउ इन आइटम डिटेल्स यू कैन ऐड द लाइन आइटम्स। आपको जितने पार्ट्स ऑर्डर करने हैं एक परचेस ऑर्डर में उतने पार्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड all those parts belongs to this particular purchasing organization, this purchasing group and this company code। ठीक है। और यहाँ पे आप मटेरियल डाल सकते हो। जब आप मटेरियल एंटर करोगे तो अगर उसका मटेरियल मास्टर मेंटेन्ड है तो मटेरियल मास्टर से उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी होगा। क्वांटिटी आपको मैनुअली डालना है। बेस यूनिट ऑफ मेजर दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डर यूनिट। तो बेस यूनिट जो है वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको प्रपोज करता है एज अ ऑर्डर यूनिट। अगर आपका ऑर्डर यूनिट इज डिफरेंट देन द बेस यूनिट ऑफ मेजर, you need to specify the order unit manually or you can set up the material master accordingly। डेट टाइप, ठीक है, दिस इज डेट कैटेगरी। यहाँ पे आपको डी मेंशन करना है, डी मीन्स डे फॉर्मेट। ठीक है। डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट फॉर दिस मटेरियल, आपको ये मटेरियल कब उसका डिलीवरी चाहिए, दैट इज डिलीवरी डेट। सो वी आर स्पेसिफाइंग अ डिलीवरी डेट टू सप्लायर की इस डेट तक मुझे ये मटेरियल मेरे प्लांट में चाहिए। नेट प्राइस, प्राइस एग्रीड विद द सप्लायर फॉर परचेस ऑफ दिस मटेरियल,
इस मटेरियल को परचेस करने के लिए सप्लायर के साथ जो एग्रीड प्राइस है, दैट प्राइस इज मेंटेन्ड हियर। कहाँ से आता है वो? इन्फो रिकॉर्ड से आता है। सो इन्फो रिकॉर्ड अगर मेंटेन्ड है तो इन्फो रिकॉर्ड से वो प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। अगर इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो आपको वो मैन्युअली डालना पड़ेगा। करेंसी इन विच वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर per each, so this price and this is the price unit per each, ठीक है, 25 रुपीज पर ईच। अगर ये पर 10 है तो आप यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो जो भी, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस यूनिट, ठीक है, पर ईच, ऑर्डर प्राइस यूनिट ऑफ मेजर। देन मटेरियल ग्रुप टू विच द मटेरियल बिलोंग्स, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, कौन से प्लांट में आपको मटेरियल चाहिए एंड कौन से स्टोरेज लोकेशन में आपको मटेरियल चाहिए। बैच, अगर मटेरियल बैच मैनेज्ड है तो आप यहाँ पे बैच नंबर डाल सकते हो। रिक्विजिशनर, मतलब पीओ क्रिएट करते समय हम बैच नहीं डालते हैं। व्हेन द गुड्स रिसिप्ट इज पोस्टेड एट दैट टाइम द बैच नंबर इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली और वी कैन एंटर इट मैन्युअली। रिक्विजिशनर में जो भी यूजर है, जो जिसके ये रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, उसका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, उसका एससीपी आईडी डाल सकते हो, जो भी है वो डाला जा सकता है। इन्फो रिकॉर्ड नंबर इज डिस्प्लेड हियर। अगर परचेस ऑर्डर विथ रेफरेंस टू किसी डॉक्यूमेंट से बनाया है, जैसे परचेस रिक्विजिशन से बनाया है या कॉन्ट्रैक्ट से बनाया है या एग्जिस्टिंग पीओ से बनाया है, तो उसका रेफरेंस भी यहाँ पे कॉपी हो जाता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। So these are the important informations that are maintained at item level. Now we will go to item detail. In item detail, again, material डिटेल्स, जो भी आइटम्स यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं आइटम डिटेल्स में, जैसे यहाँ पे अभी 2 लाइन आइटम हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो लाइन आइटम 10 के डिटेल्स आप आइटम सेक्शन में देख सकते हो। You can see more details related to this material in the item detail. For example, material data में आपको यहाँ पे again you can see the मटेरियल ग्रुप। अगर आपने वेंडर का मटेरियल नंबर भी मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया है तो दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। वेंडर का बैच अगर आपने अपडेट किया है तो यहाँ पे दिखेगा। बॉम है तो बॉम का रिवीजन लेवल यहाँ पे दिखेगा। ईएएन नंबर या यूपीसी नंबर से यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। देन यू गो टू क्वांटिटीज टैब, कितना क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया है, परचेस ऑर्डर में 100 क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया हुआ है, उसका नेट वेट, उसका ग्रॉस वेट, वॉल्यूम, दिस डिटेल्स इफ स्पेसिफाइड इन द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, अगर मटेरियल मास्टर में हमने डाला है तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आएगा। डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी डेट हमने क्या डाला हुआ है, कितना क्वांटिटी शेड्यूल्ड है, ठीक है, उसके डिटेल्स यहाँ पे हमको दिख सकते हैं। ओपन क्वांटिटी कितना है, गुड्स रिसिप्ट होगा तो ये ओपन क्वांटिटी चेंज होगा। डिलीवरी टैब में यू कैन सी दी ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन, अगर हमने सप्लायर को कुछ शिपिंग इंस्ट्रक्शंस देना है तो दो शिपिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एंड कैन बी मेंटेन्ड हियर। कौन से स्टॉक टाइप में वो मटेरियल हमको रिसीव करना है। शेल्फ लाइफ मैनेज मटेरियल है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट अगर एक्टिव है तो क्यूएम कंट्रोल की यहाँ पे डिस्प्ले होता है। रिमाइंडर्स अगर हमको सप्लायर्स को भेजने हैं तो दोज डिटेल्स कैन बी स्पेसिफाइड हियर। प्लान्ड डिलीवरी टाइम कितना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जीआर प्रोसेसिंग टाइम, व्हाट इज जीआर प्रोसेसिंग टाइम, मटेरियल गेट पे आने के बाद, सप्लायर का मटेरियल गेट पे आने के बाद ट्रक गेट पे जब आएगा तो उसका गुड्स रिसिप्ट एसएपी में पोस्ट करके वो मटेरियल को अंदर लेने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नथिंग बट जीआर प्रोसेसिंग टाइम। यूजुअली जीआर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 1 डे का होता है। इनको टर्म्स, व्हाट आर इनको टर्म्स, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड अगर कुछ टर्म्स है तो वो इनको टर्म्स में हम मेंटेन करते हैं। जैसे कोई मटेरियल इंपोर्ट से आ रहा है तो सप्लायर हमको मटेरियल कहाँ पे देगा, उसके डिटेल्स इनको टर्म्स में मेंटेन होते हैं, जो भी एप्लीकेबल उसमें इनको। सर एक्स वर्क्स एफ ओ आर ऐसा रहता है ना? करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट।
FOB फ्री क्या फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, या फ्रेट फ्री, कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल। मतलब सप्लायर हमको मटेरियल जो डिलीवर करने वाला है वो कैसे करने वाला है। फ्री ऑन बोर्ड मतलब क्या होता है, ये जनरली इसमें इंपोर्ट्स के ट्रांजेक्शन्स में यूज होता है। जैसे इंपोर्ट का जो कंसाइनमेंट आता है तो वो पहले कहाँ पे आता है, अगर सी से आ रहा है, ठीक है, तो वो पोर्ट पे आएगा। पोर्ट, तो सप्लायर हमको पोर्ट तक डिलीवरी देगा या हमारे प्लांट तक डिलीवरी देगा, राइट, गेटिंग द पॉइंट। यस सर। ठीक है, उस हिसाब से इनको टर्म्स क्रिएटेड होते हैं एंड जो भी एप्लीकेबल इनको टर्म है वो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। सर कुछ इनवॉइस, चीज़ों में ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि चाइना से मटेरियल आ रहा है, वो सर ओनली वो नवा शिवा पोर्ट तक ही डिलीवर करेगा, उसके बाद में फिर करेक्ट करेक्ट। अलग तो वो जो भी डिलीवरी के टर्म्स है ना, उस हिसाब से वो कहाँ पे हमको डिलीवर करने वाला है, उस हिसाब से एक इनको टर्म क्रिएट किया जाता है एंड दैट इनको टर्म इज मेंटेन इन द परचेस ऑर्डर। ठीक है, इनवॉइस टैब में इनवॉइस रिसिप्ट है, गुड्स रिसिप्ट बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चेक बॉक्सेस दैट वी विल सी लेटर। इनवॉइस रिसिप्ट मतलब इस मटेरियल को जब हम रिसीव करेंगे तो इसका इनवॉइस रिसिप्ट मैंडेटरी है, इसका इनवॉइस सिस्टम में हम पोस्ट करेंगे। अगर ये चेकबॉक्स सिलेक्टेड नहीं है तो इट मीन्स उसका इनवॉइस नहीं होगा। यहाँ पे GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन मतलब जब भी जी इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए गुड्स रिसिप्ट का रेफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड PO बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन ये हमको आगे आने वाला है, तभी हम देखेंगे। टैक्स, जो भी अप्लीकेबल टैक्स है इस मटेरियल के लिए, that can be maintained here in tax code. Conditions, yesterday we discussed। तो जो भी परचेस ऑर्डर में मटेरियल हम ऑर्डर कर रहे हैं उसका, उसके जो भी प्राइस के कंपोनेंट्स है, अगर सिर्फ मटेरियल को हम ऑर्डर कर रहे हैं तो मटेरियल का प्राइस रहेगा, उसमें कुछ फ्रेट इन्वॉल्व है तो फ्रेट हम ऐड कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ डिस्काउंट सप्लायर हमको दे रहा है तो वो हम ऐड कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कुछ सरचार्ज है तो दैट कैन बी एडेड। So all the different components of the prices are added in the purchase order in the form of condition types। और वो condition types में values को लेके system एक final amount को calculate करता है जिसको pricing procedure बोला जाता है। ठीक है, तो pricing procedure का जो lecture है that is already on YouTube channel। ठीक है, उसको आपको देखना है, मैं वो आपको ले लूंगा बट वो बाद में ले लूंगा, अभी आपको वो देखना है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कंडीशन टाइप्स आर यूज्ड एंड हाउ द प्राइसिंग प्रोसीजर इज क्रिएटेड। ओके, टेक्स्ट, अगेन जो परचेस ऑर्डर का बायर है उसको कुछ मटेरियल स्पेसिफिक टेक्स्ट, तो इस मटेरियल के रिलेटेड अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है जो वो फ्यूचर में रेफर कर सकता है तो दोज कैन बी मेंटेन्ड हियर। तो जो हेडर लेवल पे टेक्स्ट है वो कॉमन सारे लाइन आइटम्स के लिए टेक्स्ट है। PO लेवल पे अगर उसको कुछ मेंटेन करना है तो यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। लाइन आइटम लेवल के लिए अगर इस मटेरियल के लिए कुछ अलग डिस्कशन हुआ है तो वो यहाँ पे मेंटेन कर सकता है, दूसरे मटेरियल के लिए कुछ अलग डिस्कशन हुआ है तो यहाँ पे लाइन आइटम 20 में जाके वो मेंटेन कर सकता है। डिलीवरी एड्रेस, सो दिस इज द डिलीवरी एड्रेस ऑफ द प्लांट। तो जो भी प्लांट यहाँ पे मेंटेन किया है उसका जो एड्रेस है दैट विल बी दी डिलीवरी एड्रेस। अगर स्टोरेज लोकेशन को एड्रेस मेंटेन किया है, मैंने आपको बताया था स्टोरेज लोकेशन पे भी एड्रेस मेंटेन किया जा सकता है, तो अगर स्टोरेज लोकेशन पे एड्रेस मेंटेन किया है तो दैट एड्रेस कैन बी डिस्प्लेड हियर एज द डिलीवरी एड्रेस। कंफर्मेशंस, अगर सप्लायर से हमने कुछ कंफर्मेशंस मांगा है एक्नॉलेजमेंट के रिलेटेड या डिलीवरी के रिलेटेड, तो those confirmations can be maintained in this tab and when the vendor confirms those information can be updated here। Later we will see in detail how the confirmations work। इसका कुछ यूज नहीं है,
ये रिटेल का रिटेल इंडस्ट्री में यूज होता है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। So this is what is purchase order screen and the important details. Now in personal settings we can maintain here default values. For example document type मुझे, तो जो भी यूजर है, now this is user specific, okay, ये सबके लिए नहीं है, ये जो यूजर है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये यूजर है, इस यूजर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब भी मैं पीओ बना रहा हूँ बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट टाइप यूज्ड इज एनबी। क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे एनबी मेंटेन किया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिफॉल्ट मेंटेन किया A100, परचेसिंग ग्रुप को डिफॉल्ट मेंटेन किया P01 या P11, कंपनी कोड AG23, and you save it. Okay, so what I did, I went into the personal settings. I maintained the default values for document type NB, purchasing organization A100, purchasing group P11, company code AG23. तो यूजर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही पीओ बनाता है। सो आई एम अ यूजर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ओनली द पीओज फॉर दिस कॉम्बिनेशन। तो मैं ये डिफॉल्ट वैल्यू मेंटेन करूंगा सो दैट एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ पीओ बाय डिफॉल्ट दिस वैल्यूज विल बी फिल्ड अप, मुझे मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लिक ऑन मोर फील्ड्स एंड यू कैन सी सम मोर फील्ड्स एज वेल, लाइक पेमेंट टर्म्स भी हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, करेंसी को डिफॉल्ट कर सकते हैं, इनको टर्म्स को डिफॉल्ट कर सकते हैं। नाउ I go to purchase order item, and at item level if I want to maintain some default values like plant, so I am responsible to create POs for plant PA11 only. I can select here PA11. I use only one storage location while creating the PO and I want to default that storage location. I can maintain. ठीक है, whatever values you want to default, those values you can maintain. You can click on more fields and there are these fields as well which can be defaulted. ठीक है, क्लोज इट, सेव इट। तो मैंने क्या किया, अभी डिफॉल्ट वैल्यूज को मेंटेन किया। नाउ वंस यू सेव द डिफॉल्ट वैल्यूज, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिएट द परचेस ऑर्डर you can see all the values are defaulted. Plant is defaulted, storage location is defaulted, document type is defaulted, A100 P11 AG23 is defaulted. So I don't have to enter this information manually. I just enter the material quantity and you can be created. Got it? Clear? ठीक है, सो दिस इज पर्सनल सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हो हेडर लेवल पे और आइटम लेवल पे। तो आपको जो भी वैल्यूज डालना है, वैल्यू डालना है, उसको सेव करना है। नाउ क्लोज दिस। नाउ हियर यू कैन सी सेव एज टेम्पलेट। व्हाट इज दिस सेव एज टेम्पलेट? So save as template, if you save this PO as a template, all the values that we have maintained in this purchase order are saved by the system as a template. And next time when you are creating the purchase order, you simply select this load from template and select the template. Automatically all the details will be copied in the purchase order. ठीक है, तो ये जो transactions है, these settings will help to reduce the manual data entry time of the user. So if I save this as a template, मैंने यहाँ पे PO पे सारा information डाला, तो मैंने इसको save as template किया. So you can give a name to this template. Okay. What is the template? Description: create purchase order.
and click on OK. Continue. So system has created a template and system has saved with the name that I given. Now next time you want to create the PO, I'm not saving this PO. When you create the PO, you just simply click on load from template, select the template and select this load with header data. Click on OK. Template data copied. Click on continue. And everything is copied in the purchase order. तो जो जो हमने उसमें सेव किया था मटेरियल क्वांटिटी एवरीथिंग इज कॉपीड. ठीक है. सो आई कैन क्रिएट अ टेम्पलेट, आई कैन सेव इट एंड आई कैन यूज द टेम्पलेट टू ऑर्डर इट अगेन एंड अगेन. मुझे इसमें जो भी चेंजेस करते हैं आई कैन चेंज इट. लास्ट टाइम मैंने 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया था, इस टाइम मुझे 200 का देना है, आई विल चेंज दिस. प्राइस वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, आई कैन कीप एज इट इज एंड आई कैन सेव इट. और वेंडर भी चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हो. कैन लोड इट फ्रॉम टेम्पलेट, क्लिक ऑन कंटिन्यू, लोड विथ हेडर डेटा, ओके कंटिन्यू. आपको वेंडर चेंज करना है, यू कैन चेंज द. ठीक है. क्लियर. टेम्पलेट में कोई डाउट है? नहीं सर. एग्जीक्यूट इट. इस वेंडर को मैंने कॉपी किया और इस वेंडर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया. चेक एंड सेव द परचेस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज सेव एज टेम्पलेट एंड लोड फ्रॉम द टेम्पलेट. Now let's move on to document overview on. So once you select this document overview on, this left panel is visible and here you can see the document overview. तो ये जो यूजर है, जो भी यूजर जिसने सिस्टम में लॉगिन किया है and he is using the transaction code ME21N create purchase order, if he wants to look at the purchase orders that he has already created in the past, to take the reference of those PO to create the new purchase orders, he can do that. So this document overview helps him to see the purchase orders that he has already created in past and he can use that data as a reference to create the new purchase orders. Okay. So here in document overview you can see the selection variant. Click on this icon and click on my purchase orders. So this will display here list of purchase orders created by this user. ये जो यूजर है, इस यूजर ने जितने भी पीओज यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. Now in personal settings here you can see selection period for my documents. तो यहाँ पे 1 week का दिया हुआ है. So if I change it to 1 month, save it, refresh it, now you can see more purchase orders. तो लास्ट 1 महीने में इस यूजर ने जितने भी पीओ बनाए हैं, all those purchase orders are listed here. Now here we can only see the PO numbers as of now. You can add more details. तो इस PO का document type क्या था, इसका vendor क्या था, इसका plant क्या था. If you want to see the details, you can see. You can go here, select layout, click on this arrow here, select change layout. And here you can see column name. तो आपको जो भी values यहाँ पे display करना है, you can select that field from this column set and move it to the left side. So this is displayed columns. तो अभी display क्या हो रहा है वो यहाँ पे दिखता है and available to display is here. So you just need to select what you want to display in this document overview. For example, purchasing document number is there already. We want to see the item number, take it to the left side. You want to see the material, select the material, click on this left side arrow. If you want to see the vendor on the purchase order, select the vendor, take it to the left. If you want to see the vendor name, select the vendor name, take it to the left. Purchasing organization,
company code, plant, whatever information you want to see, PO document type, you can take it to the left. जो भी हमको डिस्प्ले करना है वो हमको लेफ्ट में लेना है. अगर इसका ऑर्डर आपको चेंज करना है, जैसे अभी आइटम नंबर है, मटेरियल नंबर है, वेंडर नंबर है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, टेक द पीओ डॉक्यूमेंट एज वेल. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पीओ नंबर चाहिए. सो द फर्स्ट आई वांट टू सी इज पीओ नंबर. सो सिलेक्ट दिस परचेसिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन दिस set fields to start. So this will take the purchase order at the purchasing document. Now purchasing document के बाद आपको क्या चाहिए, आपको देखना है vendor number. So select the vendor number and use this set fields up. Select fields up. तो ये एक पोजीशन से आपको अप मूव करने में यूज हेल्प करता है. सो क्लिक, नाउ इट इज ऑन सेकेंड लेवल. आपको इसको डिमोट करना है, यू कैन यूज दिस एरो. ठीक है, प्रमोट करना है, यू कैन यूज दिस. ठीक है, अभी जैसे डॉक्यूमेंट टाइप है, इसको मुझे थर्ड पोजीशन पे देखना है, आई कैन मूव इट अप. ठीक है, देन मटेरियल को मुझे सबसे लास्ट में देखना है. आई कैन सिलेक्ट द मटेरियल एंड आई कैन यूज दिस. तो लास्ट में लेके जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड ऑन द sequence of the fields you want to display in the document overview. Click on continue. Now you can see all the details are visible in the document overview. PO नंबर है, वेंडर है, डॉक्यूमेंट टाइप है, आइटम है, वेंडर का नेम है, परचेसिंग ग्रुप है, कंपनी कोड, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिटेल्स आर हियर एंड मटेरियल. सो अगर सपोज करो मैं ये मटेरियल को ऑर्डर कर रहा हूं, इस मटेरियल को मैं ऑर्डर कर रहा हूं, तो आई कैन सी दिस परचेस ऑर्डर हियर. लास्ट टाइम मैंने ये पीओ निकाला था. आई कैन डिस्प्ले दिस पीओ. जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड द पीओ विल बी डिस्प्लेड हियर. सो आई कैन डिस्प्ले दिस पीओ. आई कैन चेक कि क्या डिलीवरी डेट था, कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया था, क्या प्राइस से ऑर्डर किया था. आई कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस पीओ टू क्रिएट द न्यू परचेस ऑर्डर. I can use this PO number to copy and create the new PO. So click on create. The screen is open to create the new purchase order. I want to use this PO to copy and create. Now we are using PA11, right? I'll select here. Okay. So I'll copy this PO and create a new PO. So simply what I need to do is I need to select this PO and here you see adopt button. Click on this adopt button. All the details are copied in the purchase order. तो इस PO से सारे डिटेल्स इस PO में कॉपी हो गए. यू कैन रिव्यू दिस PO. कितना क्वांटिटी, पहले 100 ऑर्डर किया था, अभी 500 करना है. आई कैन अपडेट द क्वांटिटीज हियर. 500. There is a change in price. I can change the price. Change in delivery date. I can change the delivery date. And I can save the PO. Clear? So you just need to select the PO. Click on the adopt button and system will copy the details from this PO into the new PO. Clear? Understood? One more way is there. You can select the PO, place the cursor, drag this PO in the shopping cart. I'm dragging this into shopping cart. This is the shopping cart icon. Just drag the PO and place it here, and you see line item 20 is also added. Okay, so there are two ways to copy the old PO and create a new PO. You can select the PO, click on adopt button, or
You can select the PO, drag the purchase order in the shopping cart icon and leave it. All the details will be copied from the existing purchase order into the new purchase order. You can change the details and you can save the purchase order. Clear? Understood? Any doubt, any question? If you refresh it, the PO that you created will appear here. Okay, you can display purchase requisitions also here. My purchase requisitions. Click on my purchase requisitions and you can see the purchase requisitions as well. Okay. So this way you can use this document overview. Okay. आप PR को डिस्प्ले भी कर सकते हो, PR और PO को आप डिस्प्ले कर सकते हो. You can see the list of other documents, like I guess you can see here scheduling agreement details as well, but those cannot be copied or those cannot be displayed. नहीं है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है. So जो भी purchase orders यहाँ पे है, if you want to search a particular PO, you can use this find button. Let me copy this PO and I want to search this PO. I'll click on this find button, paste the PO number, click on continue, and system will take me to that PO. Okay, this is how you can use this document overview.